Well, also, I guess it is time to look ahead. And I would like to bring in Dr. Dharmasya on this point. Dr. Dharmasya, what I also find extremely fascinating is the fact that this is not only about a celebration of Hinduism, this is not the only celebration of perhaps reclaiming the lost tradition, but also an opportunity of bringing the world together. You are in Malta, and I see that several other countries today who are participating in the Pran Pratishtha, all coming together and saying that, look here, at a time when the globe is seeing this kind of turmoil, we are talking about the message of unity, the message of global peace, and there is a lot more to learn that in a dispute of this nature, we've been able to amicably solve it. Yes, you are right. This celebration is not the celebration for the Hindus. It's a celebration for the world, for all of us. This is a celebration, and also this celebration is not ordinary celebration. In my opinion, this is not ordinary celebration, and also not a religious celebration, but it's divine celebration. It's a nectar, because Ramayana itself came to this world bringing the all kind of goodness, and for the world. In our ancient scripture, written in palm leaf, जो ताल पत्र में लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथ है, खवी भाषा में, हमारी पुरानी भाषा में है, वही कहते हैं कि रामायण सभी के लिए है, और रामायण का उद्देश्य है इनाकनी कांग भुवन काबे, that is in our ancient language, खवी भाषा में है. उसका मतलब है कि रामायण का उद्देश्य है कि लोगों के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए है. और ये जो celebration is divine celebration. This is divine celebration, the celebration for all, and we need to be together, because Ramayana सिखाते हैं कि कैसे साथ साथ रहना, कैसे अलग अलग रहना वो नहीं सिखाते, कैसे साथ रहना, अलग अलग मत में लेकिन साथ रहना, ये है रामायण सिखाते हैं. अभी जितना भी मतभेद है, चाहे पॉलिटिकल डिफरेंसेस, चाहे धार्मिक differences or spiritual differences, we should kick it away, keep away from Ramayana, from this celebration. Let's be together to celebrate this. ये नेक्टार का है, जैसे समुद्र मंथन रहता है, उसमें केवल नेक्टार ही नेक्टार, अमृत है अमृत, तो अमृत को पीजिए, अमृत को पीजिए, इसमें कुछ गंदगियां मत डालना. ये बहुत साल बाद मिला है, ये चांस है, अवसर है, और this is the beginning of the goodness of the world. This is also the beginning of the glory of the India, Bharata, the beginning of the glory of the world. Let we celebrate. और ये जो रामायण है, ये संसार में है, केवल भारत में नहीं है. अयोध्या भी हमारे यहाँ इंडोनेशिया में अयोध्या है, और थाईलैंड में भी अयोध्या है, और हमारे एक बहुत बड़ा मंदिर है जावा में, प्राम्बानन मंदिर कहते हैं, वहाँ चारों दीवार में अंकित है रामायण, वो रामायण हमारे हैं. रामायण सभी का है, और ये जो सेलिब्रेशन है, try not to disturb this celebration through political or other differences. So let's be together. Sangachadhvam, Sangvadadhvam, Sangvo Manangsi Janatam. I think let's be together to celebrate this. I think so that's a very strong message that many are now sending across. Dr. Ram Vilas Vedanti साहब, आपसे ये एक सवाल करना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं कि पुराने जो जख्म है उसे भुलाकर आगे की अगर सोचे, ताकि सबको साथ में लेकर चले, क्योंकि आज जिस तरह से
राजनीति इस पूरे मामले को लेकर होता रहा। ओवैसी साहब ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को आप भूल जा रहे हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि जिस तरह से एक कम्युनिटी की मार्जिनलाइजेशन की बात होती है, क्या आपको लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए? देखिए, ओवैसी की बात तो पूरी तरह से गलत है। वहाँ पर मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं था। सन 2005 में हमने हाई कोर्ट में जो गवाही दिया था, हाई कोर्ट में गवाही देते समय माननीय जज ने हमसे पूछा था कि क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो मैंने प्रमाण वाल्मीकि रामायण का दिया था और ये पूछा था कि कब से रामलला वहाँ विराजमान है। वाल्मीकि रामायण में लिखा, कोसलो नाम मुदित स्फीतो जनपदो महान निविष्टा सरजू तेरे प्रहुत धन धान्यवान अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्वता मनुना मानवेंद्र ने या पुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 द्वेच योजनानि महापुरी श्रीमती तिरनिविस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। वाल्मीकि रामायण की इन श्लोकों की व्याख्या पूज्य करपात्री जी महाराज स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी ने रामायण मीमांसा में लिखा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की गणना किया है। गणना के अनुसार 1,81,60,65 वर्ष पहले रामलला का जन्म हुआ था। लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील जफर याब जिलानी ने जो राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़ने का विवरण दिया है, उसमें 1528 लगभग 895 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य ने मंदिर का निर्माण कराया था। राजा विक्रमादित्य को भगवान शंकर ने स्वप्न दिया था, महाकाल ने, कि जाकर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाओ। और राजा विक्रमादित्य अयोध्या नहीं जानते थे। एक नदी के किनारे बैठे थे, तब तक एक काला पुरुष काले घोड़े में बैठकर आता है और एक नदी में छलांग लगाता है तो श्वेत वर्ण का हो जाता है, उज्ज्वल वर्ण का हो जाता है। और जब बाहर निकला तो राजा विक्रमादित्य दौड़ पड़े और पूछा, आपका परिचय? तो उसने बताया कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, प्रतिवर्ष मैं अयोध्या में सरजू स्नान करने के लिए रामनवमी के दिन आता हूँ। तब राजा विक्रमादित्य ने पूछा था कि राम का जन्म कहाँ हुआ है। तो तीर्थराज प्रयाग ने बताया कि मेरे जाने के बाद एक गौ माता प्रकट होगी और गाय जहाँ पर खड़ी होकर के उसके चारों थनों से दूध की धारा बहने लगे तो समझ जाना यही राम की जन्मभूमि है। और उनके जाने के बाद गाय माता प्रकट हुई और राम जन्मभूमि पर जहाँ रामलला का जन्म हुआ था खड़ी होकर उसके चारों थनों से दूध की धारा बही। तब राजा विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खंभे पर विश्व का सबसे ऊंचा दिव्य भव्य मंदिर बनाया था। ये इतिहास बताता है। और बाबर जब पहली बार 1528 में लखनऊ आया और लखनऊ से पूर्व दिशा की ओर देखा तो उसको 2 चंद्रमा दिखाई दिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में। तो उसने अपने सिपह सालार मीर बाकी से पूछा कि ये मैंने दिल्ली कलकत्ता सब जगह एक चंद्रमा देखा, लेकिन यहाँ 2 चंद्रमा कहाँ से आ गए? तब उस समय मीर बाकी ने कहा, ये चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन दूसरा चंद्रमा राम जन्मभूमि के शिखर पर लगा हुआ चंद्रकांता मणि है। तब बाबर ने कहा कि चंद्रकांता मणि को जाकर मंदिर तोड़कर ले आओ और 10,000 सेनाओं से आक्रमण किया। लेकिन हमारे अयोध्या के लोगों ने सेना को भगा दिया। 76 बार की लड़ाई के बाद 5 लाख हिंदू मारे गए। इसके बाद उसने मंदिर को तोड़ करके उसमें 3 गुम्बद खड़ा किया, लेकिन मीनार नहीं बना पाया। कुरान में लिखा हुआ है कि जिस मस्जिद में मीनार नहीं होती उसको मस्जिद नहीं माना जाता। और 14 कसौटी के खंभे थे जिसमें हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, 12 भगवान की मूर्ति, नरसिंह भगवान की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, भगवान राम के धनुष बाण के चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। वहां मस्जिद का कोई चिन्ह था ही नहीं। मैंने हाई कोर्ट में राम जन्मभूमि मंदिर का नक्शा दिखाया और नक्शा दिखाकर जज साहब से पूछा तो जज साहब ने कहा ये तो मंदिर के चिन्ह है। और हमने जफर याब जिलानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील से पूछा था कि दुनिया के किसी भी मस्जिद में यदि इन देवी देवताओं का चिन्ह दिखा दो तो मैं राम जन्मभूमि न्यास का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते कह दूंगा कि ये मंदिर नहीं है। और जफर याब जिलानी ने मुझसे 5 दिन का समय मांगा और लौट कर जब आया तो जज साहब ने पूछा वेदांती जी के प्रश्नों का उत्तर क्या है। तो जफर याब जिलानी ने कहा दुनिया के किसी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं हैं। आज तक राम जन्मभूमि पर किसी मुसलमान ने अजान नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ा। इसलिए साबित हो गया है कि जहां रामलला विराजमान थे हैं वहां पर
कभी भी किसी मुसलमान ने अजान नहीं किया, कुरान नहीं पढ़ा। वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। इसलिए शास्त्र की परंपरा के अनुसार, वेद की परंपरा के अनुसार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, सब जगह अयोध्या में रामलला का वर्णन है। लेकिन बाबर का नाम कहीं नहीं है। अयोध्या के किसी गली में, मोहल्ले में, घाट में बाबर नाम का कोई चीज अयोध्या में है ही नहीं। यहाँ राम घाट है, कौशल्या घाट है, दशरथ घाट है, कैकई घाट है, सुमित्रा घाट है, राज घाट है, यहाँ रामकोट है। बाबर के नाम पर कोई मोहल्ला भी नहीं है, इसलिए बाबर के नाम पर मस्जिद होने का कोई सवाल ही नहीं है। और मैं सन 2005 में 5000 पृष्ठ की गवाही दिया था। उस गवाही के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने निर्णय दिया है कि जहां रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है। इसलिए ओवैसी की बात गलत है। काशी के विश्वनाथ मंदिर में जब सर्वे हुआ तो सर्वे में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी शब्द हिंदू परक है, संस्कृत परक है, वैदिक परक है। ज्ञानवापी शब्द, ज्ञान शब्द और वापी शब्द कुरान में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वो भी मंदिर ही है। वैसे ही मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि में, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि में सीढ़ियों का, देवी देवताओं की मूर्तियों को उल्टी लगाकर सीढ़ी बना दिया गया। ये मुगल काल में कांग्रेस ने उसको आगे बढ़ाया और कांग्रेस ने जानबूझ करके हिंदू मंदिरों को तोड़ने का समर्थन किया। जवाहरलाल नेहरू आज तक, जब तक जिंदा थे अयोध्या नहीं आए। इंदिरा गांधी जब तक जिंदा थी रामलला का दर्शन करने नहीं गई। कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री दर्शन करने नहीं गया और कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री दर्शन नहीं करने गया। 60 वर्षों के शासन काल में कांग्रेस ने कभी राम जन्मभूमि की ओर देखा ही नहीं। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, आखिर राम ने इन कांग्रेसियों को क्या बिगाड़ा था? इसलिए पूज्य करपात्री जी महाराज ने कहा था कि एक दिन आएगा कि कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। अब वो 2024 आ रहा है, 2024 में कांग्रेस सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। मोदी जी ने कहा था 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा, और कांग्रेस मुक्त भारत 2024 में बन जाएगा। इन कांग्रेसियों ने राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, विश्वनाथ के नाम पर, शिव के नाम पर इस देश के लोगों को केवल ठगा है। देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम दंगा कराया है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद इस देश में कोई दंगा नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए आशा यही करेंगे किया। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है।